Welcome everyone, and we are happy to welcome you to our episode Mandarpan. Thank you. This is season 3. Man ki Vani, Kahani Tumhari Hamari. And as we promise, we bring you interesting people and we share their soul stories to give you that motivation, that mental positive vibes that are important. Today we have a young banda usi tarah se, and his name is Vinit Pandey. Yes. So Vinit, he is our guest today, and he's going to tell us about his life and the ups and downs, ये चढ़ उतार, ये तकलीफ तनाव, सब कुछ कैसा पार करके how he still marches ahead और गीत गाता चलता है. That's our episode today. Marching ahead, गीत गाता चल. As you can see, he has his guitar. Music is close to his heart. लेकिन ये सब शुरू कैसा हुआ? Let's try and find out. आपको म्यूजिक, गिटार, ये सब का शुरुआत कब से हुआ? So honestly, my mom. So I will start this story with something which has happened in my childhood. Fancy dress competition था हाँ. और मेरे को मॉम ने एक कोट पैंट पहनाया और गिटार ला के दिया और शी सेड दैट मुझे स्कूल में जाके बोलना है आई एम माइकल जैक्सन, बट शी वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ एनी माइकल जैक्सन सॉन्ग्स. शी वाज वेरी इनोसेंट. सो शी टोल्ड मी द सॉन्ग व्हिच शी वाज लिसनिंग दैट टाइम. इट वाज यादों की बारात. So I was like, ठीक है. So I went to school. I still have that photo and certificate. I got second prize. क्या बात I है? said, yeah. If I will check my Instagram also, if I have it, I will show it to you right now. So I went there and I was like, I'm Michael Jackson and I'm singing Yado Ki Barat. And then I sang that song. I got second prize. So that has helped me when I grew up. I think to again Music was follow my close to passion your and heart. yes. Then I Yes. realized I like this thing. Like मुझे अच्छा लगता है. I was not aware कि इसमें career बन जाएगा. Right. But तो एक तो दिल का सुनो, इसने पहचान लिया कि उसको म्यूजिक से बहुत प्यार है, लेकिन हर किसी के जिंदगी में कठिनाई, मुश्किलें आती है. एंड इट वाज टफ फॉर यू. आई रिमेंबर यू शेयरिंग योर स्टोरी कि डैडी का जॉब चला गया था एंड एक गिटार की ज़रूरत था और 10वीं तक अपना विनीत एक गिटार अफोर्ड नहीं कर पाया. right. एक गिटार चाहिए था, तो विनीत ने किया क्या, सुनते हैं उसी की जुबानी. Yeah. So my dad lost his job and when that time I was in school and my sisters they went into the college. He got some money. He didn't invested that money like mostly how does papa लोग think that कि इसका शादी कराना चाहिए, that is the biggest risk. But my dad invested all his money into the education for my both the sister, and one is M.Tech engineer, other is MBA. और आपको And आपके then they गिटार के लिए yeah, पैसों की जरूरत yeah. था. So they helped me to learn, pay the fees and all. But what I did when I appeared my 10th, I know कि 3 महीना छुट्टी है अब. मैं एक फ्रूट जूस कंपनी में जॉब पे लगा. Though I was just 15. But I know how to, I learned how to travel. So I used to go from Kalyan to Dadar, Parel, all of those area. मार्केटिंग एंड सर्विंग. भाई साहब, आप ये जूस लेंगे आपके दुकान के लिए कि नहीं? Right. And then I have to take the order the next day. और कितना पैसा मिलता था हाथ में? So 3,000 was my salary, but he deducted 200 rupees, 100 rupees per day because I was absent for 2 days. अच्छा. और 2,800 से किया क्या आपने? 2,500 की का गिटार मैंने लिया. वाओ. That shop वाला he gave me 300 discount ना, क्योंकि I requested him कि मेरे को 2800 जो है वो पूरा I don't want to spend on myself. I want to buy something for my family. So because mom ने दिया था, so it is my turn now. So मम्मी I के bought लिए? साड़ी. क्या which बात है? costed 300 that time. वेरी गुड. And with the help of my और sisters. इन बातों में बहुत खुशी होता है. आई रिमेम्बर माई सेल्फ कि मुझे पैसा चाहिए था कॉलेज में 11th के लिए ज्वाइन करा था, फैशन वगैरह चाहिए था, न्यू क्लोथ्स, लेकिन ये सब पैसा मांगू कैसा घर के लोगों से.
तो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस इन द 11th स्टैंडर्ड और 750, आपको तो बड़ा पैसा मिला, मेरे दिनों में 753 ट्यूशन लेके मुझे हाथ में मिलता था। उसमें से मैं घर के लिए 500 देता था, 250 मेरे लिए रखता था जस्ट टू स्पेंड। और क्या स्पेंड करते थे, फैशन स्ट्रीट पे जाते थे, 30 रुपया 50 रुपया में एक शर्ट या टी शर्ट मिल ही जाता था। तो दैट वाज व्हाट वी यूज्ड टू डू। बट खून पसीना एक करके जो पैसा हाथ में आता है उसका जवाब भी कुछ अलग है। एंड दीज डिफिकल्ट टाइम्स डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। आज जो है वो गुजर जाने वाला है, लाइफ गोज ऑन। आई थिंक वी लर्न, एंड व्हाई नॉट हैव अ सॉन्ग दैट टेल्स अस अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। Sure. आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता लो, कल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। याद रखिए, इस पल को भी पूरी तरह से उसका लुत्फ उठाइए। That is what the message for life always must be. Live in the moment and make the best of that moment. We don't know what we have ahead, और जो हो चुका है उसको तो छोड़ ही देना। Well, your mother was your inspiration. She helped you come close to music. There was so much that you know got inspired with by her. And then एक मोड़ ऐसा आया आपकी जिंदगी में that you lost your mother Yeah. in 2017. 17, yeah. और वो काफ़ी मुश्किल घड़ी था आपके लिए। Yeah, I will share that moment. So basically, I was working at corporate that time. I was not into music. I was teaching weekend में. So मैं छुट्टी कभी नहीं लेता था. I took 1 day leave क्योंकि मेरा वो लाइसेंस का डेट था. Unfortunately, वो दिन कुछ और बन गया. Mom ने व्रत रखा था. She didn't had her medicine and I seriously feel आप कोई भी रिलीजन से रहो, आप कोई भी फास्टिंग करो, बट अपने मेडिसिन को मत छोड़ो, बिकॉज मेरे मॉम ने वो छोड़ा था एंड आई एम ऑलवेज आई फील लाइक यू नो दैट वाज द रीजन। आई समटाइम आई फील लाइक माइट बी वो एक छोटा सा दवाई, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मॉम को ऑलरेडी हार्ट ब्लॉकेज का इशू था और वो यू नो, तो प्लीज़ आप वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि कितना भी बड़ा वो फास्टिंग रहे, अपना मेडिसिन ले लो। यू वांट टू सैक्रिफाइस विद योर फूड, ठीक है, एक बार आई विल रादर सजेस्ट कि वो भी मत कॉम्प्रोमाइज करो, बट एटलीस्ट मेडिसिन को तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो शी वेंट टू मंदिर और वो पूजा करते हैं, हम लोग में ऐसे गोल घूमते हैं, एंड दैट टाइम उनको हार्ट अटैक आया। घर पे फ़ोन आया, उनके साथ उनकी मतलब फ्रेंड भी थी मॉम की, और फिर पापा गए घाई में, और मैं भी गया, बट ऐसा नहीं लगता ना कि डेथ हो जाएगा। सो मॉम रिक्शा हम लोग फटाफट लिए, पापा ने और मैंने, शी वॉज प्रीटी हैवी, वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन रिक्शा, बट वी हाउस एवर वी मैनेज। और मम्मी के मुँह से ऐसा कुछ तो निकल रहा था, हाँ, लाइक फीट अटैक जैसा। यस यस। सो पापा का कहना ये है कि मॉम का डेथ रिक्शा में हो गया था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे, एक हॉस्पिटल वाले लोग ने लिया नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, अर्ली मॉर्निंग समवेयर अराउंड 9:30। देन वी वेंट टू अनदर हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको शॉक विक सब कुछ दिया, बट and then she was no more, and which was very this was a difficult turning point in your life, because एक साल पहले ही I lost my uncle, and we live in a joint family. To be very frank, उस अंकल के वक्त भी we got बहुत टूट गए थे हम लोग, because सबसे equal amount of love था, family बहुत मिलती और थी। एक माँ का प्यार, एक माँ का सपोर्ट जो इतना ज़रूरी होता है। ठीक 1 year में I lost my mom, so Yes. you know it was very That hard. creates a vacuum, that creates a void.
और आपने बताया था विनीत कि आपने एक गाना भी लिखा था हाँ। जब एक बार मम्मी से रूठा था आप Sure. एंड थोड़ा सा So- कहा सुनी हुआ था. Yeah, even I am emotional now talking about my mom, but this moment just make me feel smile again. I will tell you why, because me and my mom, we both had an argument. It was when I was into study time. IPCC का एग्जाम था. I was also doing chartered accountancy. पता नहीं क्यों I was doing that, but ठीक है. एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा मॉम से झगड़ा हो गया एंड आई ओवरसेड. बहुत कुछ मैंने कह दिया था. आई डोंट रिमेंबर बट आई नो आई वाज रॉन्ग. बट मॉम लोग बहुत इनोसेंट रहते हैं. दे विल ट्रीट कि नहीं तूने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ही शायद गलत किया रहेगा इसके लिए तूने बोला. एंड देन आई मेरे को क्या करूँ मैं. आई only thing I can do Is is write a song. मेरा गिटार. Let's listen to the song and the words. Pay attention. He'll sing the complete song for Please us. God फरमाइएगा. This definitely this song will have connection with you. This is already there on YouTube, guys. Also listen there. Vineet Pandey Yeah, on that's my YouTube. channel. Yes. So how does my song goes? You had an argument with your mom. You're apologizing. So that's the theme. माफी के काबिल नहीं हूँ मैं, फिर भी तू क्यों माफ करती माँ. भोली भाली सी लगती है तू, हमेशा इंसाफ करती माँ. देखूं ना एक पल तुझे तो तरसे मेरी आंखें, मेरी हलचल से है बढ़ के तेरी बातें. कंगन की खन खन गूंजे पायल की छन छन, तेरी मुस्कुराहटों से आंगन रोशन. धन्य हूँ मैं जो तेरी कोख से हाँ मैं जन्मा हूँ माँ. साया तेरा जो मेरे ऊपर है, परवाह तू करती क्यों है माँ. So now to Antara, how it will connect. हम कैसे स्कूल जाते थे, ये वो कुछ लाइन है. उंगली थामे मेरी तू स्कूल ले जाती, वक्त से पहले तू मुझको लेने आती. आंगन में पहुंचते ही रोटी सेक खिलाती, और फिर अपने पल्लू में तू मुझको है सुलाती. I will connect the next Antara together. Up whatever we have achieved in our life, I think major role parent have played, because सब लोग को स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता है. I'm sure ये भी एक लाइफ है. तो how does these few lines go? पढ़ा लिखा के तूने मुझको काबिल बना दी, मेरे हर जख्मों पे है मरहम तू लगा दी. तेरी ममता देख के आंखें भर मेरी आई, तुझसे ही मेरी जिंदगी तेरे बिन है तन्हाई. So when I sing this pre-chorus कंगन की खनखन, आप सब लोगों ने कनेक्ट किया होगा. जब मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था, मेरी मॉम जब चल के आती थी ना, तो उनके पायल में और उनके कंगन की आवाज एक अलग ही थी. मतलब वो समझ में आ जाता है. आपकी मॉम आएगी तो आपकी मॉम है ना, आपकी मम्मी का. Right. So these pre-chorus has really connected me, and my favorite part of the song. कंगन की खन खन गूंजे पायल की छन छन, तेरी मुस्कुराहटों से आंगन रोशन. धन्य हूँ मैं जो तेरी कोख से हाँ मैं जन्मा हूँ माँ. साया तेरा जो मेरे ऊपर है, परवाह तू करती क्यों है माँ. What a beautiful tribute to the love of a son to his mom, right? And her blessings will always be upon you. लेकिन ये जब मम्मी का देहांत हुआ था, उसके पश्चात कुछ टाइम से कुछ महसूस होने लगा था. विनीत was feeling uncomfortable. मन में उदासी, टेंशन, तनाव तो था ही शायद, but life had to go on.
But what did you experience? What were you experiencing, Vinit? So And I know this is difficult for you, yeah. but thank you so much for sharing so that we can learn from these experiences. I will elaborate because this I cannot Concise, express in yes. few words. So I lost my mom, and then I realized I have lost everything. अब मैं सक्सेसफुल बनूं या करोड़पति बनूं, आई कैनॉट मेरे मॉम को मैं नहीं ला सकता फिर से, मतलब सब वेस्ट होने वाला है कितना भी, मतलब आई कैनॉट डू एनीथिंग, ठीक है. सो ये तो एक चीज़ क्लियर थी. अब मेरा यहाँ पे डर खत्म हो गया लाइफ को लेके. मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरे को ये सब डर निकल गया. मैं मेरा जॉब ना एंजॉय कर रहा था ना समझ पा रहा था कि व्हाट एम आई डूइंग देयर. मुझे लग रहा था पढ़ाई करने के बाद ये भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बस इसमें पैसे मिलने वाले हैं मंथ एंड में. सो मैंने ना मेरा जॉब छोड़ दिया. मैं एक म्यूजिक स्कूल में ट्राई करने लगा जहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया, मैं फेल हो गया. म्यूजिक वॉज माई पैशन, आई फेल देयर एंड मेरा ईगो हर्ट हुआ, बट मैं उसको भी पॉजिटिवली लिया. व्हाई आई फेल? बिकॉज आई डोंट नो फ्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड मी. आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसा नहीं था. आई जस्ट डोंट नो फ्यू थिंग्स वेयर आई हैव टू वर्क ऑन. फिर कुछ महसूस हाँ, होने बिफोर आई लेफ्ट माई जॉब, मैं जॉब के साथ साथ ही म्यूजिक स्कूल में ट्राई किया था, बट मुझे मिल नहीं पाया. तो मेरा जॉब तो था हाथ में तभी. तो अब मैं मेरे कंपनी में मेरा गिटार रखा था, तो वहाँ पे मैं आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम इधर उधर टाइम पास करके. ब्रेक लेके मैं मेरे पार्किंग में जाके मैं पूरा प्रैक्टिस करता था. आई लिटरली लर्न अ लॉट ड्यूरिंग माई कॉर्पोरेट डेज. वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था. आई वॉज जज. I did everything what I wanted to do with my passion, you know. So I had a good time. I learned a lot. हाँ, फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था और अच्छे से प्रिपेयर करके मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है. 3 मंथ लोग मुझे सब लोग को इंटर्न रखे थे जहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उन लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस. दे ट्रेन्ड अस फॉर लॉट ऑफ थिंग. और 3 मंथ में अनएम्प्लॉयड था. हियर माई गर्लफ्रेंड दैट टाइम एंड नाउ माई वाइफ, सो शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. माई सैलरी वॉज लाइक 12-13 हज़ार रुपया था. और वो भी जब बंद हो जाए तो क्या हालत होती होगी. और 3 मंथ हो, बीच बीच में वो एयर हंगर, वो सांस पकड़ना, वो क्या महसूस होता था? वो मैं उस पे भी आ रहा हूँ, बट दिस आई विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो. So when I lost my job ना, here my girlfriend played an important role. She helped me with money. अब मैं किसी से पैसा मांगता है, उसके बाद पता था I will eat 1 bread less, but ठीक है, मतलब this was the type of person I was. So she helped me with money और कभी उसने सुनाया नहीं. When I got my job, तब सब धीरे धीरे बेटर होने लगा. उसको पता था इसको मिल जाएगा. अब जॉब तो मिल गया, पसंद का जॉब, पैसे डबल काम आधा, ऐसा जॉब मिल गया. सोचो, आपके पसंद का जॉब, पैसे डबल काम आधा, सब अच्छा चल रहा है. बट मॉम को गुजरे हुए 7 महीने लगभग हो गए थे. मेरे को सब अच्छा होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता था, ट्रैवल करते वक्त, काम करते वक्त. सो दिस वाज द वे. अभी मैं वो बात करते करते भी वो ब्रीथ आया. सो I was not breathing normal. I realized there is some problem. मैं सब चेकअप कराया, ब्लड चेकअप कराया, ECG सब कुछ कराया. एक डॉक्टर ने तो एंजियोग्राफी का भी बोल दिया था. I was scared that time because but वो नहीं कराया. But because I realized कि कुछ तो गड़बड़ है. So I will elaborate this point again. फिर मैं को इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. I think 1 महीना 1.5 महीना तक कुछ भी नहीं मिल पा रहा था. मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था. देन आई विजिटेड, अभी कुछ तब 3 डॉक्टर के पास जाने के बाद जब कुछ नहीं हो पा रहा है, देन अब मैं क्या करूं. देन आई विजिटेड साइकियाट्रिस्ट एंड we had a good counseling. I mean, he shared few points. He asked everything what has happened. अच्छे से उन्होंने सुना everything. He gave me some medicine and उस टाइम के बाद तुरंत बंद नहीं हुआ, बट काफी कम हुआ. क्या समझ में आ गया कि शरीर
बराबर चल रहा था, लेकिन यहाँ मन में टेंशन, तनाव, तकलीफ, वो क्लोजर जो होना चाहिए था वो शायद पूरा नहीं हुआ था. आई थिंक द साइकियाट्रिस्ट हेल्प्ड यू कम टू टर्म्स विद योर ग्रीफ and to then come out of it gradually, to put yourself together and to strengthen your mind and your ability to cope with stress from that point and further. So उस anxiety attacks या वो panic attacks को पार करते हुए अब he is in so much better control of his life. And like you mentioned, you found the love of your life. आप लोग का रिश्ता तो more than 10 years has been going through, लेकिन they waited. Why did you wait? आप लोग ने एकदम से वो प्यार का बुखार को चढ़ने क्यों नहीं दिया? So basically ठीक है, वो अच्छी लगती है, वो अच्छा लगता है, ये सब सबके साथ होता है. We all have, we all go through. Attractions. But सबसे important होता है कि आगे भी सस्टेन होके खुश रहना. देखो आप कुछ भी बोल दो, हाँ, मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो वी रियलाइज दैट कि इफ यू वांट टू मैरी, रखोगे कहाँ पे उसको? इफ यू डू नॉट हैव इनफ स्पेस, हाँ, कैसे खिलाओगे? प्राइमरीली चलो दोनों का है, दोनों आजकल के ज़माने में, बट ठीक है, प्राइमरीली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. तो हम लोग ने अच्छे से वेट किया. शी हेल्प मी ऑल्सो, एंड उसकी सैलरी मेरे से डबल हो गई थी, ठीक है, काफ़ी. और बट स्टिल शी डिडंट गिव अप ऑन मी. शी वाज लाइक ठीक है ना, चलेगा. मतलब नॉर्मली होता है ये चीज़, ठीक है, कि उसका ही ज़्यादा रन, ये एक सोच. इट इज रॉन्ग, डेफिनेटली इट इज रॉन्ग. बट ये सब जो हो अपन डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, या तो इंस्टाग्राम पे या वीडियोस में, बट शी डिडंट गिव अप ऑन मी. एंड वो उसको पता था मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड मैंने फिर मेरा जॉब में और बेटर करने लगा. और देन वी बॉट आवर होम. Wow. And then post 8 months of buying the house, we got married. शादी को 1 साल हो गया है. अभी 1 साल होने वाला है. Fresh from Malvan, had a wonderful holiday. Yeah. Yes, all with the water sports etc. क्या मैसेज मिलता है आपको? प्यार, असली प्यार में ताकत होता है. There is support, there is love, there is patience, there is tolerance, and together they decided to wait till both of them understood their roles and responsibilities, और फिर उन्होंने आगे जाके शादी के लिए मंजूरी एक दूसरे के लिए दिया था. It was intercaste. There was intercaste. a lot of Okay. yeah, like she's Maharashtrian and I'm from North. Religion is same, but caste was too different. But ठीक है ना, सच्चा like, प्यार सब कुछ पार कर देता है. और इसी सच्चे प्यार को सल्यूट के लिए एक हो जाए गाना जो ऐसे लव स्टोरिया को बुलंद करता है. क्या आपको इशारा मिल गया गाना कौन सा है? मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा. Wonderful, really beautiful, right? और आप भी करो अपने लाइफ से प्यार. Make it a point to love life and to spread that love and happiness around. यही तो मकसद होता है मन दर्पण का. अपने एपिसोड्स जो इतने टाइम से चलते आए हैं, it is a way of life that we promote and we motivate people to get those positive vibes and to stay as steady in life as possible in spite of the difficulties. From your story, Vineet, we learn that death or difficulty, financial problems, ये सब के बावजूद हम सपोर्ट ले सकते हैं अपनों का. और जब तब भी मुश्किल होता है
then we can definitely reach out to a psychiatrist without shame and without stigma. जुड़े रहिए हमसे, हमारे प्रोग्राम से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता है. Remember, we have Ouch, our support group, every second Sunday of the month at 12 o'clock. So coming up soon in April will be 9th of April, 12 o'clock, our Ouch support group meeting. Mandarpan, as always, every month like we had today. Tune in to Wellsprings Counseling. This is our YouTube channel as well as our Instagram handle, and attend the different programs that we have offline as well. From both of us here, my wonderful guest Vineet Pandey. Thank you. Follow him on Instagram. He is a music man with passion for his guitar. He also teaches people, and I'm going to be trying the guitar once more through your class. Right? So have a wonderful week ahead. Have a wonderful month ahead. In fact, a wonderful year and a life ahead. From all of us here, all the very best. Take care.